Okay, so in the last lecture, we derived relationship between alpha and gamma, where alpha was linear expansion coefficient and gamma was volume expansion coefficient. तो आज सिर्फ लिखना है. तो as I told you, there's no big deal in writing things. हमें जब हम थ्री डायमेंशंस की बात करते हैं, वॉल्यूम मतलब थ्री डायमेंशंस, क्यूब लिया था, तो पहले बोल लो कंसिडर अ क्यूब, consider a cube of initial side length L0 at 0 degrees Celsius. Then, of course, you're going to increase the temperature. So, if we increase the temperature to T degrees Celsius, then the new length will be हमको ऑलरेडी पता है, दिस इज एल टी विच इज L0 1 plus alpha delta t, where delta t is increase in temperature. तो सिंपल है. Then also initial volume of the cube is initial volume of the cube is V0, which is L0 cube, right? Then final volume of the cube at temperature T will be given by, at temperature T degree Celsius will be given by we know that Vt will be Lt cube and Lt is L0, right? Cube 1 plus alpha delta T का cube. Equation number 1, right? But what we know from volume expansion coefficient, हमको already पता है, but we know that what we know is Vt is equal to V0 1 plus gamma delta T. हमको अल्फा ऑलरेडी पता है, गामा ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया. अगर मैंने एग्जाम में बोला कि जस्ट डिराइव रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको वेयर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ओके, और यहाँ पे भी बताना पड़ेगा, not because I don't know, but because exam में this is expected from you to write coefficient of volume expansion. ठीक है. Then let us call this as equation number 2, वो बाद में करते हैं. Therefore Vt is equal to V0 मतलब L0 cube 1 plus gamma delta T. Let us call this equation number 2. And then हमने सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट किया था. So equating 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब दोनों का राइट हैंड साइड सेम होगा. तो फिर आपको याद होना चाहिए 1 में आपने क्या लिखा था. यू शुड रिमेंबर इट इज L0 क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब इक्वल टू L0 cube 1 plus gamma delta t. Cancel. A plus b bracket cube is a cube plus 3a square b.
3a² plus 3ab² plus b³ is equal to 1 plus gamma delta t। फिर आप बोलोगे since alpha is very small, therefore alpha cube and alpha square, of course terms containing alpha cube and alpha square can be neglected. Terms containing alpha cube and alpha square can be neglected with respect to alpha, neglected as compared to alpha. Therefore अभी हमने ये और ये टर्म निग्लेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब you will be left with 1 plus 3 alpha delta t is equal to 1 plus gamma delta t. Therefore you will be left with 3 alpha delta t equal to gamma delta t, and therefore delta t cancel, so alpha is equal to gamma by 3, right? Therefore alpha is beta by 2 and this is equal to gamma by 3। ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो सिंपल सा डेरिवेशन है और सिंपल लैंग्वेज में ही लिखना है, हमको कोई फैंसी लैंग्वेज लिखना नहीं है जैसे कुछ बुक्स में लिखा है। कीप इट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। तो ये हमारा कल हुआ था अच्छे से, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम रिवीजन हुआ है, तो वी डोंट नीड अनदर रिवीजन। So we will move to next topic, which is called as specific heat capacity. Specific heat capacity, इसमें हम दो पार्ट्स देखेंगे। मतलब एक ही बात है, सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए थोड़ा सा चेंज है एज कंपेयर टू गैसेस। वो क्या चेंज है समझेगा आपको। तो हम पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में बात कर लेंगे। राइट, तो बिफोर वी डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आता कहां से है? वी हैव टू सी ए जनरल ऑब्जर्वेशन। आपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा, बट इफ नॉट तो अभी चांस है, कर सकते हो इफ यू हैव थर्मामीटर ऑफ कोर्स। लेट अस टेक अ कंटेनर, इसमें हमने वाटर भर दिया, एंड लेट अस टेक अनदर कंटेनर, इसमें हमने सेम अमाउंट में कोई और लिक्विड भर दिया। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है पैराफिन ऑयल का, तो ठीक है पैराफिन ऑयल, बट यू कैन टेक एनी अदर लिक्विड और यू कैन से टू डिफरेंट सॉलिड्स, एक कॉपर ले लो दूसरा आयन ले लो, व्हाटएवर इट इज। तो यहाँ पे वाटर है, मैं इन दोनों को सेम टाइम के लिए सेम हीटर से हीट कर रहा हूं। सो आई एम यूजिंग द सेम बर्नर, मतलब सेम हीटर फॉर द सेम टाइम। क्वांटिटी भी सेम था, हीटर भी सेम है, मतलब दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी गया होगा, हीट एनर्जी। तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज, अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बड़ा है तो इसका 2 डिग्री से बड़ा है। इसका अगर 1000 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि वाटर विल बेसिकली इवापोरेट एट 100। तो लेट अस से अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बड़ा है तो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पैराफिन का 20 डिग्री से बड़ा है। सो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, the rise in temperature for paraffin oil is twice that of water for the same quantity and same amount of heat supplied। इसका मतलब ये है कि हर एक लिक्विड या हर एक सॉलिड के लिए अगर मुझे 1 डिग्री से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट लगेगा।
एंड टू मेक थिंग्स लिटिल सिंपल हम बोल देंगे वाटर भी हमने 1 किलोग्राम लिया, ऑफ कोर्स यू कैन से 1 लीटर, बट नॉर्मली 1 kg बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हम यूनिट मास टर्म में डिफाइन करते हैं। लीटर इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो हम लोग कभी भी यूनिट मास की बात करते हैं, राइट? तो our general observation is, if I take unit mass of a substance, to increase its temperature by 1 degree Celsius, we need to supply some heat. That is called as specific heat. Simple, right? तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया उन्होंने वाटर और पैराफिन ऑयल का? जस्ट टू टेल यू कि हर एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रहेगा। दैट्स व्हाई दे हैव, इसका मतलब इट इज सब्सटेंस स्पेसिफिक, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, so it depends on, varies from substance to substance, right? तो इसको डिफाइन करने के लिए यू कैन यूज S, स्मॉल s नॉर्मली सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में यूज करते हैं। दिस इज बेसिकली डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T, दिस इज स्पेसिफिक हीट। तो डिफाइन कैसे करोगे मैं अभी बता रहा हूं। द अमाउंट ऑफ हीट supplied or required to raise the temperature of unit mass of substance, क्योंकि हमने 1 kg लिया था, यूनिट मास क्यों, अगर मैं सीजीएस में तो वो ग्राम हो जाएगा। The amount of heat supplied or required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius और 1 Kelvin, क्योंकि डिग्री सेल्सियस 1 से बड़ा मतलब केल्विन भी 1 से ही बढ़ेगा, is defined as specific heat capacity. सिंपल। कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है मोल्स, इंस्टेड ऑफ सेइंग यूनिट मास वी से पर मोल, पर वो पर मोल वो गैस के केस में होगा, बिकॉज यू डोंट मेजर सॉलिड्स और लिक्विड्स इन नॉर्मली इन मोल्स, करेक्ट? तो क्लियर है। एज यू कैन सी फ्रॉम फॉर्मूला, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऊपर जूल, क्योंकि डेल्टा क्यू इज हीट, हीट इज एनर्जी, नीचे किलोग्राम और टेम्परेचर, तो केल्विन लिखो या डिग्री सेल्सियस लिखो, सो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इज specific heat. That's it. So this is all about specific heat of solids and liquids. तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, उन्होंने बहुत सारे मटेरियल लिखा है, जैसे उन्होंने लिखा है स्टील, और स्टील का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 120। देन लीड का है 128, एंड देयर आर सो मेनी। फिर पैराफिन ऑयल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल पैराफिन ऑयल का लिया है। तो फॉर पैराफिन ऑयल it is 2130, and for water it is roughly double of this 4186. इसका मतलब it tells you, as I just mentioned, कि वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगता है। दिस इज व्हाट इट मींस। गुड। तो सिंपल है ये, एक्सट्रीमली सिंपल। सो I'll repeat it over again and then we will just make note of it. तो आइडिया सिंपल था। बाय द वे, ये बताते बताते और एक चीज बतानी है आपको। हमारे पास 2 कंटेनर है, एक में हमने 1 kg ऑफ वाटर लिया है और इनिशियल टेम्परेचर इसका मान लो 27 डिग्री है, मान लेते हैं, डजंट मैटर, रूम टेम्परेचर पे ऐसा मान लेते हैं। हमारे पास दूसरा कंटेनर है, दूसरे कंटेनर में भी हमारे पास 1 किलोग्राम 27 डिग्री पे, बट only thing is we are putting some other liquid which is paraffin oil. What is paraffin? बाद में देखेंगे, it is just some kind of oil. Okay, don't go into minute details of this, नहीं तो chemistry चालू हो जाएगा यहाँ पे। So it is paraffin oil. Good. And I don't remember any chemistry anyways. तो हमको इन दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना था, मतलब दोनों का 28 डिग्री करना था। तो क्वेश्चन इज, डू आई हैव टू सप्लाई सेम अमाउंट ऑफ हीट? करके देखा हमने इसको डेल्टा क्यू हीट दिया, इसको भी डेल्टा क्यू हीट दिया। इसका तो 27 से 28 डिग्री हो गया, लेकिन इसका तो 27.5 पे ही है।
मतलब मैंने जब सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ पैराफिन इज ट्वाइस कंपेयर टू वाटर। वाटर का हाफ डिग्री हुआ उसका 1 होगा, इसका 1 होगा उसका 2 होगा, राइट। इसका मतलब दिस हीट required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius is substance dependent। तो उसको बोलते हैं specific heat capacity in short। इसका ये भी मतलब होता है, मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैंने डिफाइन तो कर दिया, specific heat is amount of heat supplied per unit mass to increase the temperature by 1 degree Celsius, right? गुड। इसका ये भी मतलब होता है कि जब सब्सटेंस 1 डिग्री से कूल डाउन होगा वो वापस उतना ही हीट रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन था, इतना हीट आपको देना पड़ेगा टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। अगर मैंने अब उस वाटर को, सेम वाटर कंटेनर है, सेम क्यों बोल रहा हूँ, नहीं तो आप दूसरे कहीं से भर के लाओगे उसमें इम्प्योरिटी भी हो सकता है, सेम है, उसको हमने कूल डाउन किया। इसका मतलब ये है कि जब कूल डाउन करोगे तो फिर इतना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा सराउंडिंग को। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाने में हीट लगता है उतना ही टेम्परेचर कम करने में हीट रिलीज भी होता है। तो फिर अभी थोड़ा सा डिफरेंट मॉडिफाई कर देंगे हम लोग। आप क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और रिलीज्ड to increase or decrease the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius or Kelvin, 1 Kelvin, right? तो दोनों चीजें बोल देंगे स्पेसिफिक हीट। गुड। अब because we are talking about specific heat, let's go one step further and let's also talk about 7.6.2 if I'm not wrong, that is specific heat capacity of gas। तो फॉर गैस भी डिफाइन कर लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर गैस या फिर ऑफ गैस। अब ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है और ये केस अच्छे से समझ लो, नीट के एग्जाम तक याद ही नहीं रहता, इक्वेशंस गलत कर देते हैं क्योंकि ये समझा ही नहीं है। थर्मोडायनामिक्स आप फिजिक्स में पढ़ो, केमिस्ट्री में पढ़ो, आपको ही लगने वाला है। और बहुत लॉजिकल चीज है, बहुत सिंपल सा बात है। गैस में प्रॉब्लम कहाँ होता है, गैस में इशू ये है कि इफ आई हैव अ कंटेनर, मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर में एक गैस फिल करके रखा हुआ है, यूनिट मास ही मान लो, यूनिट मास है 1 किलोग्राम ऑफ गैस है। नाउ आई कैन डू 2 डिफरेंट थिंग्स हियर। एक तो मैं इसका जो ऊपर का पार्ट है मैं फिक्स कर दूंगा और फिर मैं हीट करूंगा, मतलब आई एम नॉट अलाउइंग द गैस टू एक्सपांड, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो और इन द सेकेंड केस आई हैव दिस पिस्टन अरेंजमेंट हियर, मतलब आई एम अलाउइंग गैस टू एक्सपांड। तो एक में कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे, एक में कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे। ओके, तो जब हम स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले गैस के लिए 2 टाइप्स, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। उसमें और 2 टाइप्स, एक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट मतलब फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ गैस, एक मोलार स्पेसिफिक हीट फॉर 1 मोल ऑफ गैस, राइट। गुड। तो नोटेशंस ध्यान रखना, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट विल बी ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, मतलब यूनिट मास ऑफ गैस के लिए कैपिटल एस यूज होगा। और यहाँ पे अगर V लिखा तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे अगर P लिखा तो एट कांस्टेंट प्रेशर। गुड। ओके, अगर मैंने CV लिखा तो मोलार स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, मैंने अगर CP लिखा तो ये भी मोलार स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर। गुड, राइट। नाउ
if you compare these two cases here, एक में मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं और वो हीट एक ही काम कर रहा है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। पहला क्योंकि वॉल्यूम फिक्स था, राइट, तो जो भी हीट दूंगा वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, करेक्ट। दूसरे केस में जो मैंने हीट सप्लाई किया वो दो काम कर सकता है, एक तो टेम्परेचर बढ़ाएगा, दूसरा वर्क डन करेगा टू मूव दिस पिस्टन अपवर्ड्स। प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम नहीं। सो इजी, प्रेशर कुकर अगर आपने देखा होगा तो ऊपर से उसको लॉक क्यों करते हैं, व्हाई डोंट यू पुट मूवेबल पिस्टन। करके देखो कभी ऐसा मूवेबल सिस्टम लो, लगा दो उसको, जो भी आप बनाते हो कुकर में, इट विल टेक मोर टाइम एंड मोर एनर्जी, क्योंकि नाउ whatever heat you are giving will also perform work to move the piston up, correct। तो the idea is when we talk about, जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो जो भी हीट हमने सप्लाई किया उसने दो काम किए, एक तो वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, दूसरा वो वर्क डन करेगा टू मूव पिस्टन अपवर्ड्स। तो सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा हीट देना पड़ेगा, क्योंकि पहले केस में तो मैंने जो हीट दिया था उसने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा दिया, देयर इज नो एक्सपेंशन, नो वर्क डन। यहाँ तो वर्क डन भी होगा, मतलब स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट हो या मोलर स्पेसिफिक हीट हो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा आपको। पहले केस में तो आपने जो भी हीट सप्लाई किया उसने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा दिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो भी हीट सप्लाई किया था उसने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया है। सेकेंड केस में मैं हीट दे रहा हूँ, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वर्क डन भी हो रहा है, इसलिए ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड केस में। तो ऑलवेज एस पी इज ग्रेटर देन एस वी या फिर सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। इसलिए जब आप आगे जाके 12th में फिजिक्स में या 11th में केमिस्ट्री में आप जब भी सीपी और सीवी का रिलेशन सीखोगे तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, इसको बोलते हैं मायर्स रिलेशन। कोई कोई लोग मेयर्स रिलेशन प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज ओके, मायर्स रिलेशन। लॉजिक ही है, मैं सीवी में कुछ ऐड कर रहा हूं, मतलब सीपी जो है वो सीवी से ज्यादा होगा, अगर सब्ट्रैक्ट करता तो फिर कम होता। तो आई एम एडिंग समथिंग टू सीवी, एडिंग समथिंग मतलब सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, करेक्ट। अभी आप जब मैंने पूछा आपका वेट कितना है, यू सेड 70, लेट अस से 50 kgWT, फिर आपने एक हेवी सा बैग डाल दिया तो योर वेट बिकम्स लेट अस से 55 kgWT, है ना। तो आई कैन से weight with bag is equal to weight with nothing plus some constant, I don't care। तो of course weight with bag is greater, है ना। तो सिर्फ आप you don't have any bags, your weight is less, तो यहाँ पे भी वही चीज है, सीपी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमको जरूरत पड़ती है टू इंक्रीज टेम्परेचर, तो ये ग्रेटर है क्योंकि मैं बीच में प्लस साइन दिख रहा हूं, प्लस का मतलब समझा रहा हूं मैं, दैट्स इट। ये वेट वेट छोड़ दो चाहिए तो, इट इज जस्ट एन एनालॉजी समझने के लिए। मैं क्या बताया, मुझे 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना था, एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखा है, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। जब मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो हीट ज्यादा देना पड़ रहा है, और जब मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो हीट इज लेस, राइट। तो डेफिनेटली सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। तो रिलेशन कैसे याद रखते हो, मायर्स, ये आप डिराइव करोगे बाद में, सीपी इज सीवी प्लस समथिंग, दैट इज व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, सिंपल, राइट। तो विल रिपीट अगेन, इजी है। हमारे पास दो कंटेनर है, दोनों में सेम गैस है, ओके। देन हमने दोनों के नीचे बर्नर लगा दिया, हमने यहाँ पे भी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 10 जूल का हीट सप्लाई किया, यहाँ पे भी 10 जूल का हीट सप्लाई किया। इस 10 जूल ने 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे 10 जूल 1 डिग्री नहीं, लेकिन 0.5 तक ही बढ़ा पाया या फिर 0.6 तक बढ़ा पाया, डिपेंड्स। ऐसा क्यों,
क्योंकि यहाँ पे पिस्टन को ऊपर लेके जाने में वर्क डन हो रहा है। अपने आप कोई चीज ऊपर जाएगी क्या अगेंस्ट ग्रेविटी? नहीं। सो वो वर्क डन कहाँ से आया? फिर जो आपने हीट सप्लाई किया है, हीट इज एनर्जी, वर्क डन इज एनर्जी, राइट? तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ पिस्टन को ऊपर भी मूव करेगा। दैट इज वाई हियर 10 जूल से काम नहीं होने वाला आपका, आपको हो सकता है 15 जूल लग जाए। So that is why specific heat at constant pressure is greater than constant volume. अब डिफाइन करते वक्त आप बोलोगे सिंपल है। पहली चीज तो दो टाइप है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलार स्पेसिफिक हीट। तो अगर इफ यू वांट टू डिफाइन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में क्या किया था हमने? 1 किलोग्राम ऑफ गैस लिया है, मतलब यूनिट मास ऑफ गैस लिया है। तो आप बोलोगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट at constant volume is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume. हो गया principal specific heat at constant volume, and principal specific heat at constant pressure, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure is called as principal specific heat at constant pressure. अब इसमें सिर्फ हम लोग राइज बोल रहे हैं तो फॉल भी लगा दो साथ में आप ना, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, या तो फिर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और रिलीज्ड टू increase or decrease the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume is principal specific heat at constant volume. अब यहाँ पे अगर आपने यूनिट मास हटा के पर मोल लिख दिया तो बन गया मोलर स्पेसिफिक हीट, राइट? सो इफ आई से the amount of heat required or released, supplied or released to increase the temperature of, या फिर decrease the temperature of per mole of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure बोलोगे तो molar specific heat at constant pressure, at constant volume बोलोगे तो molar specific heat at constant volume. Good. इसके आगे you are supposed to remember few equations at least until you give NEET and JEE exam. उसमें से मैंने एक बता दिया आपको, CPS CV plus R, एक ये सॉलिड्स के लिए है, ये गैसेस के लिए है, बात कर रहे हैं हम लोग। और एक वन मोर थिंग इज देयर, मुझे मोलार मतलब कैपिटल C और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में भी रिलेशन चाहिए। कैसे करेंगे? फिर हमको ऑलरेडी पता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, और C क्या होता है, 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ये म्यू यूज करके रखा है, डजंट मैटर, नंबर ऑफ मोल्स को n बोलो म्यू बोलो, इट्स ओके, व्हाटएवर यू वांट टू डू, नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा Q बाय डेल्टा T। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में हम यूनिट मास की बात कर रहे थे इसलिए m लिख रहे थे, मोलर स्पेसिफिक हीट में हम मोल्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग म्यू या फिर n लिख रहे हैं, तो सिंपल। नाउ यू शुड बी नोइंग नंबर ऑफ मोल्स मतलब म्यू और n, इसके दो फॉर्मूलाज है। एक तो यू कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स एस n अपॉन Na, बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है, आई विल टेल यू। सो वी नो दैट we want to find a relation between molar specific heat and principal specific heat, and we know that number of moles is mass of gas upon its atomic or molecular weight depending on the type of gas.
तो ये इसको मैं ऊपर लिख देता हूं फिर. ओके, गुड. और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी तो है ही. एंड दिस वॉज नथिंग बट principal specific heat. So you have molar specific heat equal to molecular or atomic weight multiplied by a principal specific heat. Molar is equal to molecular weight या फिर weight atomic weight into principal specific heat. इस पे आगे जाके 12th में kinetic theory of gases में क्वेश्चंस JEE नीट में आते हैं. सिंपल इक्वेशंस है, इसको भूलना नहीं. Okay, so I will repeat this again and then we will start noting down. So the idea is simple. लिक्विड्स और सॉलिड के केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर, उसको मैं इंटर पार्टिकल बोल देता हूँ. पार्टिकल मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो देट इन सॉलिड्स यू ऑलरेडी नो, एक एटम या मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वो इट जस्ट कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग, राइट. सो वहां पे वॉल्यूम एक्सपांशन हुआ भी तो बहुत कम होता है. हमने ऑलरेडी देखा अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻5 थी. So for liquids or for solids, you just define one type of specific heat. उसको बोलते हो specific heat capacity. You can call it as principle if you want. पर वहां पे है ही एक, जब है ही एक तो वही प्रिंसिपल है, राइट. ओके, गैसेस में आप दो टाइप से डिफाइन करते हो. एक है प्रिंसिपल फॉर यूनिट मास, एक है मॉलिक्यूलर फॉर पर मोल. और इन दोनों में दो टाइप है. at constant volume constant pressure, at constant volume constant pressure. ओके, तो constant volume पे डिफाइन करना होगा तो बोल दोगे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और रिलीज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास. तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट प्रेशर है तो एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर यूनिट मास की जगह पे मैंने बोला पर मोल तो मोलर स्पेसिफिक हीट, इफ इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इफ इट इज कांस्टेंट प्रेशर तो एट कांस्टेंट प्रेशर. फिर मोलर स्पेसिफिक हीट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय C. सम बुक्स दे से स्मॉल c मतलब मोलर, कैपिटल C मतलब प्रिंसिपल. तो कंफ्यूजन मत करना. आई एम जस्ट यूजिंग C फॉर मोलर and S for principal. So molar specific heat is weight into weight of gas. Gas is atomic, so atomic weight. If gas is molecular, so molecular weight into principal specific heat. Okay, so that's it. इतना आपको पता होना चाहिए था. So we'll quickly start noting down things one by one. So we will start with solids and liquids. मैंने जो बताया, वी विल स्टार्ट विद जनरल ऑब्जर्वेशन. हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था? हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर मैंने दो सेम हीट सोर्सेज लिए हैं, दो हीटर दिए हैं, या फिर मैं एक ही हीटर यूज कर रहा हूं, मैंने 10 मिनट तक वाटर को हीट किया है उसी हीटर से, फिर मैंने 10 मिनट तक पैराफिन ऑयल को हीट किया है उसी हीटर से. सो आई एम सप्लाइंग सेम अमाउंट ऑफ हीट. गुड. बट द राइज इन टेम्परेचर फॉर दीज टू इज डिफरेंट. इनफैक्ट फॉर पैराफिन इज ट्वाइस दैट ऑफ वाटर. तो स्टार्ट यहां से करना. It is observed that, it is seen that the rise in temperature for paraffin oil is twice compared to water if same amount of heat is
supplied to the same quantity of both the liquids. It means that to increase the temperature of a substance, of a unit mass of substance, of a unit mass of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, the quantity of heat supplied, the quantity of heat required is dependent on the type of substance. Therefore, we can say S, which is specific heat, फिर हम लोग define भी कर देंगे बाद में, is equal to delta Q upon M delta T, where S is specific heat. आप या तो स्पेसिफिक हीट बोलो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो तो भी चलता है, राइट? तो दिस वन रियल लाइफ एग्जांपल हियर. अगर आपने एक बर्तन में पकाने के लिए टमाटर डाला है और आलू भी डाला है और टमाटर खा लिया तो इट फील्स मोर हॉटर देन पोटैटो बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ टोमेटो इज मोर. तो इसलिए it is also connected to your real life situation. तो ये स्पेसिफिक हीट हो गया. डेल्टा क्यू आपका आ गया अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और रिलीज्ड. अभी मैं दोनों मोड में लिखूंगा, सप्लाइड भी और रिलीज्ड भी, सप्लाइड और रिलीज्ड. डेल्टा टी इज इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब चेंज इन टेम्परेचर. So now you can define in what is specific heat. So specific heat capacity can be defined as the amount of heat supplied और released. अगर आप दोनों में से सिर्फ एक भी लिखोगे तो भी चलेगा. Normally I prefer writing for supplied. So as amount of heat supplied or released, or for what? To change the temperature. Change मतलब increase or decrease. To change the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Right? Anything else? Constant volume, constant pressure? Yes, no? No, because we are talking about solids and liquids. So specific heat capacity can be defined as the amount of heat supplied or released to change the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. That's it. हो गया. हमको वैल्यूज याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में दिया होता है.
so we don't need it. Okay, तो सिंपल है. अभी नेक्स्ट सेशन में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस में जो जो हमने अभी आज सीखा है वो पूरा लिख लेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स.